یہاں خبروں کی تفصیلات آگاہ کریں۔ سڑکوں کا جال بچھے گا، تعمیر و مرمت ہوگی۔ فیصل آباد میں سڑکوں کی بحالی کے لیے 1,82,72,00,000 روپے منظور کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں سڑکوں کے لیے 1,82,72,00,000 منظور۔ M3 موٹر وے سمندری انٹرچینج تا سمندری شہر دو رویا روڈ کی تعمیر کے لیے 50 کروڑ منظور۔ سمندری رجانہ ٹوبہ روڈ کی بحالی کے لیے 5 کروڑ کے فنڈز منظور۔ سمندری روڈ، جھنگ روڈ، ستیانہ روڈ، جڑاں والا روڈ کے لیے 36 کروڑ 55 لاکھ منظور۔ چناب کلب تا کمال پور انٹرچینج تک سرگودا روڈ کے لیے 18 کروڑ 44 لاکھ منظور۔ چک 103 چنیوٹ تک سڑک کے لیے 16 کروڑ 57 لاکھ منظور۔ چک 30 جیم بے سے امین بنگلہ نڑوالا روڈ کے بقیہ حصے کے لیے 6 کروڑ 15 لاکھ منظور۔ سمندری سہیوال سڑک کی بحالی کے لیے 50 کروڑ کے فنڈز منظور۔ PND کا سیکریٹری CNW سیکریٹری خزانہ کو فنڈز اجرا کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ بعد میں بھی سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ آفس نے غلام محمد آباد میں سڑکوں کی بحالی کی تفصیل مانگ لی۔ آدم چوک سے قادر آباد تک سڑک کی بحالی کا تخمینہ لاگت ارسال کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ آفس نے نشاط آباد سے سول کوارٹرز تک کارپیٹڈ سڑک، پنو چوک تک گول مسجد تک سڑک کی تعمیر و مرمت کے کام کی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ ادھر جنگ میں TB کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہونے لگا۔ گزشتہ ایک ماہ میں 1,307 مریض ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں رپورٹ ہوئے۔ جنگ میں TB کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں 1,307 مریضوں نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا رخ کیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق TB کے بڑھنے کی وجہ ان میں مناسب آگاہی کا نہ ہونا ہے، جبکہ مریض ماسک کا استعمال بھی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ مرض دوسرے لوگوں کو بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ادویات کے ساتھ ساتھ مناسب احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اگر ان کی کنٹیکٹ سیمپلنگ ٹائم پہ ہو جائے تو ان کے گھروں میں جو بچے جن کو بخار ہے یا 3 ہفتے زیادہ کھانسی ہے تو ان کے اگر سیمپلنگ ہو جائے یا ویک ہو رہا ہے تو بر وقت ان کی میڈیسن شروع ہو جائے تو ان گھروں سے جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ یہ کمیونٹی سے بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب ہاسپٹل میں موجود انسولین اور ادویات کی لیبارٹری ٹیسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے مریض مفت ادویات کے حصول سے محروم ہے، جبکہ ہاسپٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلد لیبارٹری ٹیسٹنگ ہونے کے بعد مریضوں کو ادویات فراہم کی جائیں گی۔ مریض ادویات نہ ملنے کا رونا روتا نظر آتے ہیں۔ غریب بندہ اس لیے ہاسپٹل آتا ہے، سرکاری ہاسپٹل، کہ یہاں سے مل جائے گی۔ اب ہم رکشہ چلاتے ہیں، یہ بتائیں اتنی مہنگی دوائیاں لے سکتے ہیں؟ یہ باہر کی دوائیاں لکھ کے دے دی۔ حکومت ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ فیصل آباد میں ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث کسانوں کا استحصال ہونے لگا۔ کنڈا شوگر مافیا کی سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گنے کی خریداری، کسان کم قیمت میں گنا بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ کنڈا مافیا کسانوں سے کم قیمت میں گنا خرید رہا ہے۔ سرکاری ریٹ کی بجائے 200 اور 230 روپے فی من گنا دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری جانب فیصل آباد میں آٹا چکیوں کا گندم کا کوٹا بحال نہ ہو سکا۔ آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن پھر سے سراپا احتجاج، ضلع کونسل چوک ٹریفک کے لیے بند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کہ گورنمنٹ پنجاب اور سینٹرل گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ ہے جو نورا کشتی کر رہی ہیں، ان کی آپس میں جو کہ بند ہی نہیں رہی، اس لیے یہ عوام کو زندہ درگو کر رہے ہیں۔ ہمارا چکی کوٹا بحال نہیں کیا جا رہا کیونکہ حکومت نام کی کہیں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ میری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ آج ہم 30ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کر رہے ہیں۔ ان سے اپیل ہے کہ ہمارا چکی کوٹا بحال کیا جائے۔ ادھر ٹوبہ کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش نایاب ہو گئیں۔ کمال چوک، اسلام پورہ، کینال روڈ سمیت دیگر سٹورز سے سبسڈائز آٹا اور گھی غائب ہو گیا۔ شہر ٹوبہ میں موجود تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء ختم ہو گئیں۔ شہری سستی اشیاء کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ شہری کا کہنا تھا حکومت غریبوں کو ریلیف فراہم نہیں کر رہی۔ میں 14,000 تنخواہ لیتا ہوں، شہر کے سب یوٹیلیٹی سٹورز گھوم لیے، سبسڈی والا گھی اور آٹا نہیں مل رہا، باہر سے لے نہیں سکتا، پہنچ سے باہر ہے، جبکہ حکومت کو غریبوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں صبح سے پورے شہر میں پھر رہا ہوں، یوٹیلیٹی سٹور پہ نہ ہمیں گھی مل رہا ہے، نہ ہمیں آٹا مل رہا ہے، نہ کوئی ہمیں ریلیف دیا جاتا ہے۔ 14,000 روپیہ سیلری ہوتی ہے جس میں ہم نے سارے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، اور اگر 3-4 دن سے یوٹیلیٹی سٹور بند ہوں تو ہم اپنے گھر کا راشن یا یہ گھی یا چینی یہ کیسے پورا کریں؟ شہری کا مزید کہنا تھا کہ مہنگائی نے اب بس کروا دی ہے، حکومت کم از کم اشیاء خوردنوش میں ریلیف دے اور وافر مقدار میں تمام سٹورز پر مہیا کروائے تاکہ زندگی میں کچھ تو سکون آئے۔ کیمرہ مین جواد ملک کے ہمراہ اسامہ یاسین، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ احسان راشن پروگرام کمشنر شاہد نیاز کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل کمشنر جنرل سمینہ سیف نیازی اور DC عمران حامد شیخ سمیت دیگر نے شرکت کی۔
एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिविजनल कमिश्नर शाहिद न्याज ने की, जिनका कहना था कि एहसास रियायत प्रोग्राम के तहत घी, चीनी और दालों पर 40% तक रियायत मिलेगी, जबकि हर यूनियन काउंसिल में 5 किराना स्टोर को परफॉर्मेंस के हिसाब से दोबारा वेरीफाई किया जाएगा। आज जो महंगाई का दौर है, इसके अंदर राशन लोगों को मिले, खाने को मिले, इससे बड़ी नेकी और इससे बड़ा सदका और इससे बड़ी मदद और कोई नहीं है। तो हुकूमत पंजाब का ये जो इनिशिएटिव है, चीफ सेक्रेटरी साहब पंजाब इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने हुक्म दिया है कि सारे कमिश्नर साहबान और डीसी साहबान वीकली इसको रिव्यू करें। वो खुद हर जुमेरात को इसको रिव्यू कर रहे हैं और इसकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। इजलास में टोबा, झंग और चिन्योड़ से डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। डीडी सोशल वेलफेयर ने एहसास राशन रियायत प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। शाहिद न्याज का कहना था कि शफाफियत के मेयार को बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर्स की सदारत में तहसील लेवल पर कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं और एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के लिए बैंक ऑफ पंजाब और नेशनल बैंक के नुमाइंदगान भी तहसील लेवल कमेटियों का हिस्सा होंगे। हमने आज देखा है कि इसके अंदर कोई बॉटलनेक्स तो नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो उसको दूर किया जाए। अपनी डिवीजन की सतह के ऊपर हमने ये कमेटीज़ बना दी हैं हर तहसील के लेवल के ऊपर, जिसके अंदर बैंकों का नुमाइंदा और सोशल वेलफेयर का नुमाइंदा और हमारे एसी साहबान हैं, ताकि लोकल लेवल के ऊपर कोई इशू हो तो वो सीरियस होने से पहले उसको रिजॉल्व कर दिया जाए और लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। शाहिद न्याज का मजीद कहना था कि 35,000 से कम आमदन वाले अफराद एहसास राशन रियायत प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बिजली की कीमत में रिलीफ देने के लिए एनओसी ना मिल सके, पावर लूम मालिकान परेशान हो गए। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को बिजली की कीमत में रिलीफ देने के लिए एनओसी न मिल सके, पावर लूम मालिकान कहते हैं आटे में नमक के बराबर पावर लूम्स को एनओसी मिले हैं। एफबीआर की जानिब से एनओसी मिलने पर पावर लूम सेक्टर को सस्ती बिजली देने का रिलीफ मिला, मगर पावर लूम मालिकान कहते हैं बेशतर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों को ताहाल एनओसी जारी नहीं किए गए। बिजली का बिल 55 रुपए फी यूनिट के हिसाब से आ रहा है। जिनको एनओसी मिला है इनको 25 से 30 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिल आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने हुकूमत और एफबीआर से मुतालबा किया है कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों को एनओसी जारी किए जाएं ताकि इंडस्ट्री को रिलीफ मिले। हर रोज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हर रोज मजदूर बेरोजगार हो रहा है और जो फैक्ट्रीज जिनको जीरो रेटिंग की सहूलत नहीं है, 55 रुपए पर यूनिट है, वो फैक्ट्रियां आप देखें एरिया में दरादर बंद हो रही हैं, हर रोज बंद हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। पावर लूम्स फैक्ट्रियों के लिए नई मुश्किल। फेस्को ने एफबीआर की सिफारिश पर दर्जनों फैक्ट्रियों को जीरो रेटेड की मद में दिया जाने वाला रिलीफ वापस ले लिया। सार्फिन के जिम्मे कई मिलियन रुपए बिल आयद कर दिए। इन फैक्ट्रियों ने सेल्स टैक्स रिकॉर्ड में हेराफेरी की थी। सेल्स टैक्स रिकॉर्ड छिपाने पर एफबीआर ने मुतलका फैक्ट्री मालिकान को जुर्माने और टैक्स आयद किया था। एफबीआर ने सेल्स टैक्स में हेरफेर के दौरानिये में बिलों में मिलने वाला रिलीफ खत्म करने की सिफारिश की, ताहम टैक्स माहिरीन ने एडजस्टमेंट को खिलाफ कानून करार दिया है। और आपको बताएं, टेक्सटाइल बहरान ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एक बार फिर मैदान में आ गई। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के नाम खत में तफसीली एदाद शुमार शामिल कर दिए। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात की बांग्लादेश की टेक्सटाइल बरामदात के साथ तकाबली जायजा भी पेश किया गया। बरामदात में माली साल के पहले 5 महीनों का फर्क रिपोर्ट की शक्ल में शामिल किया गया। फैसलाबाद डिवीजन के अलाइड अस्पताल में वाक़ डेंटल यूनिट ओपीजी एक्सरे मशीन से महरूम है। डिवीजन के सबसे बड़े अलाइड अस्पताल में वाक़े डेंटल यूनिट ओपीजी एक्सरे मशीन से महरूम। ऐसे में मुंह और जबड़े का एक्सरे करवाने वाले मरीज खार हो रहे हैं। कहते हैं कि 800 रुपए ओपीजी एक्सरे की फीस है। ऐसे में बाहर से ओपीजी एक्सरे करवा के आते हैं तो डॉक्टरों की ड्यूटी टाइमिंग खत्म हो चुकी होती है। इसलिए ओपीजी एक्सरे मशीन अस्पताल में हो तो इलाज में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बाहर से एक्सरा करवाया, अंदर से बहुत मुश्किल पैदा होती है, ठीक है ना। बाहर जाने के लिए डॉक्टर लिख के देते हैं, बाहर में जाएं, उधर एक्सरा करवाएं। उधर फीस है 800-900 रुपये मर्जी से फीस लेते हैं। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसका मुश्किल का कोई हल होना चाहिए। कल आए, परसों भी आए थे, रोजाना आना पड़ता है, डॉक्टर चले जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने आज नीचे भेजा। कल एक्सरा करा के लाए तो डी डेपो से आ जाए तो वो भी कोई बात नहीं सुन रहे आज। एमएस डेंटल सेक्शन डॉक्टर शर्जील अरशद का कहना था कि 3 बार हुकूमत को ओपीडी एक्सरे मशीन की फराहमी से मुतालिक खत लिख चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ताहम एक मकामी एमपीए ओपीजी एक्सरे मशीन फराहम कर रहे हैं। प्रॉब्लम जरूर है हमारे पास। एक हमारे यहाँ पे एमपीए हैं
تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ CBCT بھی وہ لے کے دے رہے ہیں ہمیں اور OPG مشین بھی لے کے دے رہے ہیں. تو وہ امپورٹ کی پروسیس میں ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آ جائے گی. روزانہ تقریباً 50 سے زائد مریض OPG ایکس رے کروانے کے لیے الائڈ اسپتال سے دیگر اسپتالوں کا رخ کر رہے ہیں. کیمرہ مین قمر بھٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. اور آپ کو بتائیں، جنگ انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں. 27 لاکھ سے زائد آبادی والے ضلع میں محکمہ شہری تحفظ ادارہ غیر فعال ہے. یہ ہے محکمہ سول ڈیفنس یا شہری دفاع کا دفتر، جس کی چار دیواری ہے، نہ ہی کوئی دفتری ماحول. 27 لاکھ سے زائد افراد کے ضلع جھنگ میں محکمہ شہری دفاع میں صرف 21 اہلکار ہیں، جن میں 16 رضاکار شامل ہیں. محکمے کی حالت اس قدر پتلی ہے کہ صرف 5 ملازمین مستقل ہیں. سول ڈیفنس آفیسر، سینئر کلرک، جونیئر کلرک، انسٹرکٹر اور سینیٹری ورکر کی اسامی خالی ہے. سول ڈیفنس آفیسر کی سیٹ بھی 2 سال سے خالی پڑی ہے. محکمے کے پاس 2 گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ ایک بھی ڈرائیور کی منظور شدہ اسامی موجود نہیں. محکمے کے پاس عمارت بھی موجود نہیں. لوکل گورنمنٹ کے کمروں میں قائم دفتر کی چار دیواری نہ ہونے سے جانوروں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. پنجاب سرکار محکمہ سول ڈیفنس جھنگ کو بھول چکی ہے، جس سے محکمہ ہنگامی حالات میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا. کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ. اور اب خبر یہ ہے کہ فیصل آباد میں سیوریج کے مسائل حل نہ ہوئے. مختلف علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی کی مشکلات بڑھ گئی ہیں. شکایات بر وقت حل نہ ہونے پر MD واسا نے 9 افسران کو شوکوز نوٹس بھی جاری کر دیے. MD واسا جوار انور کی جانب سے ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سمیت 9 افسران سے شوکوز پر 17 دسمبر کو جواب طلب کر لیا، جن کا کہنا تھا کہ شہر کے کئی علاقوں میں پانی کی لائنیں موجود ہونے کے باوجود پانی سپلائی میں کوتاہی ہو رہی ہے. فیصل آباد میں حکومت کی اسکول لائبریریز کی طرف عدم دلچسپی. لائبریریز چلانے کے لیے سٹاف ہی موجود نہیں. فیصل آباد میں حکومت کی سکول لائبریریز کی طرف عدم دلچسپی. لائبریریز چلانے کے لیے سٹاف ہی موجود نہیں. ضلع بھر کے 2212 اسکولوں میں صرف 5 لائبریرین موجود. 75 سیٹوں میں سے 63 سیٹیں بھی خالی. ضلع بھر میں لائبریریز کے لیے اسسٹنٹ لائبریرین، اٹینڈنٹ اور لائبریری کلرک کی سیٹیں خالی ہیں. فیصل آباد میں لائبریریز کے لیے مختلف حاضر سروس سٹاف کی تعداد محض 12 ملازمین ہے. محکمہ تعلیم حکام کے مطابق لائبریریز کو فنکشنل رکھنے کے لیے اساتذہ کو لائبریریز چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. پرنسپل گورنمنٹ کرسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میاں سعید نے کہا کہ لائبریری فعال رکھنے کے لیے ٹیچر کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. لائبریری ڈیوٹی دینے والے ٹیچر کہا کہ خالی پیریڈ میں لائبریری کو کھلا رکھا جاتا ہے تاکہ بچوں کو کتب بینی کی طرف لایا جا سکے. جنگ میں میٹرک پاس کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ماہانہ اسکالرشپ. صرف سرکاری اسکول سے 2022 میں میٹرک پاس کرنے والے طلباء اہل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 23 دسمبر 2022 ہے. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے تحت اسکالرشپ لینے کے لیے مجموعی نمبر کم از کم 60% ہوں اور سائنس مضامین میں 70% ہوں. وظیفے کے لیے درخواست دینے والے طلباء کا امتحان ہوگا. پاس ہونے والے طلباء کا انٹرویو لیا جائے گا. انٹرویو میں پاس ہونے والے طلباء کو FSC کے لیے 15,000 روپے ماہانہ کا وظیفہ بھی دیا جائے گا. پنجاب حکومت کا عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے خصوصی مہم کا آغاز. لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ چنیوٹ نے بچوں کی پیدائش کا اندراج شروع کر دیا. مہم برائے اندراج پیدائش 10 دسمبر تا 20 دسمبر 2022 تک جاری رہے گی. ڈپٹی ڈائریکٹر LGCDD چنیوٹ غلام شبیر نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک اپنے بچوں کا اندراج پیدائش نہیں کروایا وہ اس مہم سے فائدہ اٹھائیں. ادھر فیصل آباد میں ون وے کے ساتھ ٹریفک قوانین کی دیگر خلاف ورزیاں. سٹی ٹریفک پولیس نے مقدمات کا اندراج شروع کر دیا. CTO آصف صدیق نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 24 گھنٹوں میں دوران سگنلز ون وے کی خلاف ورزی اور تجاوزات پر 285 مقدمات ضلع بھر میں درج کروائے ہیں. ادھر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں اراکین پارلیمان اور لیگی عہدیداروں کا اہم اجلاس. فیصل آباد میں ورکرز کنونشن 26 دسمبر کو منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. چودھری شیر علی گروپ بھی شریک ہوگا. اجلاس میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری، سٹی صدر شیخ اعجاز احمد، ضلعی صدر میاں قاسم فاروق، سٹی جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، سٹی صدر یوتھ ونگ آصف کسانہ، ضلعی صدر یوتھ ونگ عثمان اشرف گجر بھی شریک ہوں گے.
फैसल आबाद में पीटीआई की इलेक्शन करो मुल्क बचाओ मुहिम समनाबाद में एमपीए मियां वारिस अजीज की क़यादत में रैली निकाली गई। एमपी अब मियां वारिस अजीज का कहना था कि हम मुल्क की बका की खातिर पंजाब में इक़्तिदार छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि इंतखाबात हों। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। फैसलाबाद में सजादा नशीन खान का महबूब आबाद शरीफ हवेलियां पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की। हुकूमत को मुआशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठा होने का मशवरा दिया। पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी मुश्किलात से दो चार है। अवाम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, एटमी प्रोग्राम को बेचने की बातें हो रही हैं। जंग में महंगाई और ओवर चार्जिंग का मसला, प्याज की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को नरखनामे आवेजा करने के साथ सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने की भी सख्त हदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने इजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। जिला के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी इजलास में शरीक हुए। शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर फैसलाबाद कैंपस के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शोबा उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर फैसलाबाद कैंपस के ज़ेर तमाम एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। मसाइल के हल में कारोबारी अदारों के किरदार के हवाले से गुफ्तगू की गई। सदर रुबीना अमजद कहती हैं कि तालीम के जरिए माशी तरक्की हासिल की जा सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस के मौके हैं जिसने कि एक पूरी दुनिया खोल के रख दी है तालिब इल्मों के सामने। वो एसईओ से लेके अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने तक हर चीज़ एक क्लिक पे पड़ी है उनके पास, जिसके जरिए वो सीख सकते हैं, अपने कारोबार को फरोग दे सकते हैं। चेयरपर्सन इंडस्ट्रियल अकेडमिया एंड ट्रेड एक्सपोर्टर्स सूबिया अकील कहती हैं कि वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद की तिजारत और सनत को फरोग देता है। तालीम ही वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए मुआशी तरक्की हासिल की जा सकती है। हम तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें पेश कर सकते हैं कि तालीम के जरिए अपनी अपनी तरक्की की सिमत और मंजिल का बेहतरीन तयन किया जा सकता है। चेयरपर्सन हेल्थ कमेटी नजमा अफजल कहती हैं कि फैसलाबाद में वुमेन ऑफ चैम्बर कॉमर्स कारोबारी खवातीन की सलाहियतों को उभारता है। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी खवातीन के लिए ट्रेनिंग सेशंस भी होने चाहिए। अगर आप सनती इदारों से किसी की नुमाइंदगी लें तो दे कैन गाइड यू बेटर कि किस किस्म की नौकरियां अवेलेबल हैं, किस किस्म के हमें ट्रेंड स्पेशलिस्ट चाहिए, ताकि आप अपने करिकुलम के अंदर वही चीज़ें शामिल करें जो एक सनती इदारों को यहाँ पे चाहिए, बजाय इसके कि बच्चा डिग्री लेके निकले और उसको पता न चले कि मैंने किधर जाके क्या नौकरी करनी है। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरपर्सन एजुकेशन कमेटी रुखसाना शाहिद कहती हैं कि तलबा को चाहिए कि वो पढ़ने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स भी बने। मुल्क में जो नामसाइद हालात आते हैं जैसे कि सैलाब और ज़लज़ले वगैरह, इसमें भी मुखय्यर कारोबारी हजरात अहम किरदार अदा करते हैं। ख़वातीन चैम्बर ख़वातीन को एम्पावर करने में एक अहम किरदार अदा कर रहा है, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एम्पावरिंग वुमेन इज़ लाइक बिल्डिंग द नेशन। तलबात की तलीमी इदारों में कारोबार के हवाले से प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाना चाहिए ताकि तलबात को एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से आगाही फराहम की जा सके। कैमरामैन कमर बूटा के साथ किरदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। आगाह करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को कागजात से निकाल कर डिजिटलाइजेशन करने के मंसूबे पर पाकिस्तान सिंगल विंडो की अफादियत और तरीक़ेकार के हवाले से ड्राई पोर्ट पर सेमिनार का एहतमाम किया गया। कलेक्टर कस्टम्स सईद भट्टू समेत इम्पोर्टर्स और कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स ने शिरकत की। इस मौका पर कलेक्टर कस्टम्स फैसलाबाद सईद अहमद भट्टू का कहना था कि मौजूदा दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार की डॉक्यूमेंटेशन को सहल बनाने के लिए PSW बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करें, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस का सरीना होटल में कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। वर्चुअल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस का सरीना होटल में कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रबीना फारूक और रेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी ने एक तालिबा मरियम बतूल में गोल्ड मेडल और अलीना अब्दुल नईम और दिगर 7 तलबा में मेरिट सर्टिफिकेट तकसीम किए। वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर रबीना फारूक और रेक्टर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी ने तलबा को मुबारकबाद दी और मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने के साथ साथ वालिदैन की खिदमत गुजार रहने का मशवरा दिया। So the virtual university is progressing in a fast pace under the vibrant and visionary leadership of Professor Dr. Arshad Salim Bhatti.
Rector, Visual University. गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तालिबा मरियम बतूल ने भी कन्वोकेशन में अपने ख्यालात का इजहार किया और अपनी कामयाबी पर असातिज़ा और वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा किया। Virtual University of Pakistan has taught us much more. We must recognize the valuable lessons that were taught to us by our parents and family. कन्वोकेशन में 819 तलबा को डिग्रियां जारी की गईं, जिसमें से 280 बैचलर्स डिग्री, 476 मास्टर्स और 63 MS के तलबा शामिल थे। डिग्री हासिल करने वालों में हसन जाहिद, अम्मार, अली मोहम्मद फसीह, वसीम साजिद, मनान खालिद, फरूक असलम, काशिफ नदीम, इस्मा मुकद्दस, मेमुना अजहर, साइमा परवीन, अनम जहरा, आसिफा सफदर, मुबीन कौसर, महीन अलमास, फाइजा नूरीन, तिशाम नवाज और दीगर शामिल। कन्वोकेशन में रजिस्ट्रार मोहसन जावेद, कंट्रोलर फैसल तहसीन शाह, जनरल मैनेजर वर्चुअल यूनिवर्सिटी रुबीना अली, फैकल्टी मेंबरान और दीगर तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चिन्योट में हाथ से लिखे हुए दुनिया के सबसे बड़े कुरान मजीद की नुमाइश गवर्नमेंट इस्लामी कॉलेज में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद ने इस्लामी कॉलेज में कुरान मजीद की नुमाइश का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर फारूक रशीद का कहना था कि कुरान मजीद उर्दू तर्जुमे के साथ लिखा गया है, जिसकी लंबाई 41 फीट, चौड़ाई 53 इंच और 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तेजी के जमाने में स्पेशल अफराद भी किसी से पीछे नहीं। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे निश्मीन के स्पेशल अफराद हुनरमंद बनने के लिए तैयार हैं। तेजी के जमाने में स्पेशल अफराद किसी से भी पीछे नहीं हैं। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे नशीमन के स्पेशल अफराद ने हुनर सीखने की तैयारियां शुरू कर दी। नशीमन में स्पेशल अफराद के लिए होम अप्लायंसेस की क्लासेस का आगाज कर दिया गया। अब्दुल्ला कहते हैं कि क्लास में स्पेशल अफराद को वायरिंग, फ्रिज और घर में बिजली का काम सिखाया जा रहा है। तो हम बच्चों को ये बोर्ड वगैरह बनाना सिखाते हैं। उसके बाद हम LED बल्ब तैयार करते हैं खुद यहाँ पर। उसके बाद हम मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग और सब कुछ यहाँ पर जो भी बिजली के मुतल्लिक कोई चीज़ एक्सेसरीज हैं ख़राब होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को यहाँ पर खुद ठीक करना सिखाते हैं। टीचर अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि खुसूसी अफराद को ये माशरा बोझ समझता है। अगर स्पेशल अफराद कोई भी हुनर हासिल कर लें तो ये हुनर स्पेशल अफराद को इस काबिल बना देता है कि ये अफराद किसी पर बोझ ना बन सकें। कोई घर की चीज़ ख़राब हो जाती है तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने घर की खुद चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये कहीं शॉप वगैरह बना लेते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग आएंगे सामान ठीक करेंगे, जिन लोगों का ख़राब होगा, ठीक है, ये अपना बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं। खुसूसी अफराद को हुनरमंद बनाने के साथ साथ इनको माशरे में कबूल करना भी लाजमी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में ब्रिटिश काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद किया गया। मंसूर साकिब, हफीजुर रहमान, ताहिर महमूद ताहिर समेत दिगर शौरों ने कलाम पेश करके खूब समा बांधा। मुशायरे की सदारत डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल गुलाम अब्बास और शायर मसूद कंवर ने की। उनके अलावा सदर पाक ब्रिटिश आर्ट्स मोहम्मद इशफाक बाबर ने शिरकत की। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियन जीतने की खुशी में तकरीब। कमिश्नर शाहिद न्याज, डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख और प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक न्याजी, प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद, असातिज़ा और तुलबा भी मौजूद थे। प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद का कहना था कि हमने मुसलसल मेहनत से टीम को इस काबिल बनाया है जिसने फैसलाबाद का नाम रोशन किया है। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें कि इस तकरीब के मौका पर एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक न्याजी, प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद, असातिज़ा, कोचेज और तलबा भी मौजूद थे। कमिश्नर शाहिद न्याज और दिगर मेहमान खुसूसी और मेहमान क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों में नकद इनामात तकसीम किए गए। अलमी और अदबी मुकाबलों के पोजीशन होल्डर्स तलबा में भी कैश इनामात तकसीम किए गए। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, फैसलाबाद के शहरियों ने सर्द रातों में चाय और पराठे के ढाबों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे जो शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है चाय स्टॉल्स और पराठेों का यहाँ पे रुक कर लिया और चाय पराठा खा के जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं यहाँ पे जो है। और उनका यही कहना है जो शहरी हैं कि चाय पी के दिन भर की जो है वो थकान दूर हो जाती है और जो हम पराठा साथ जब खाते हैं तो वो ये है कि हम थोड़ी सी जो है कीमत में हम जो है वो उससे पेट भी भर जाता है। तो इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है वो चाय पराठा वाली दुकानों का रुख किया और यहाँ पे जो है वो गर्मा गर्म चाय पी रही हैं, पराठे खा रहे हैं, उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस वाले से हमारे पास कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं, उनसे पूछती हैं। अच्छा अंकल जी, ये बताइएगा क्या इम्तियाज़ है सर्दी में चाय का साथ पराठे का, क्या कहते हैं? देखो जी, जब सर्दियों में चाय पीते हैं तो दिन भर की जो थकावट है वो ख़त्म हो जाती है, बंदा एकदम
अपने आप को हिसास पिशास हो जाता है, थकावट ख़त्म हो जाती है। बस पराठे और चाय जो किसी टाइम भी हो, सुबह हो शाम हो, उसका अपना ही टेस्ट है, दोनों का जो इकट्ठा है वो तो फिर और। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चाय पराठे का जो है वो एक अपना अलग ही मज़ा है और जिसकी जो कीमत भी है वो काफ़ी मुनासिब है, जिससे कहा कि उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इसी वाले से पास दुकानदार भी मौजूद हैं, उससे पूछती हैं। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में कितना इजाफा हो जाता है आपके भी वो जो कारोबार में, कितने ग्राहकों में इजाफा हो जाता है, कारोबार बेहतर होता है? जी बिल्कुल, बदलते मौसम का हमारे कारोबार पे एक बड़ा खुशगवार असर पड़ता है और सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए लोग हमारे पास शौक दौर जब आते हैं, हमारे पास आते हैं और हमारे खानों से और हमारी चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो दुकानदारों का भी यही कहना है कि हमारा जो कारोबार में जो खासा इजाफा हो जाता है सर्दियों में, जैसे ही सर्दी पड़ती है तो यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो चाय अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।